Children, in this video we are going to discuss activity ratios. Activity ratios, what are the parts of activities ratio? First is inventory turnover ratio. So inventory turnover ratio, first of all we have to know that activity ratios shows the ratio of day-to-day activities of the business, that how much business is getting from day-to-day activities, what is the proportion of inventory to cost, what is the proportion of credit revenue from trade receivable, what is the relationship of trade payables and credit purchases. These things are studied under activity ratio. That's why it is named activity ratio, so that it can explain the activity of business, that how much business is active. Okay, so first is inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio, when we find the formula, cost of revenue from operations divided by average inventory. Cost of revenue from operation is not a new term for us. In standard 11, also in financial statement chapter, where you have studied financial statement of sole proprietorship, we have studied cost of revenue from operation. So just recall it. Cost of revenue from operation is also known as cost of goods sold, and in 11 you have studied this with the name cost of goods sold. So what is the formula of cost of goods sold? So cost of goods sold formula is sales minus gross profit, and sale is known as RFO, so RFO minus gross profit. Or second formula is RFO plus gross loss. Okay, and third formula is opening inventory plus net purchase plus direct expenditure minus closing inventory. If you remember the trading account format of standard 11, all these formula are of same. How? If gross profit is there, then gross loss will not be there. So gross profit will be deducted from sale, you will get cost. If gross loss is there, then loss plus revenue from operation, both will be some cost. Then third option, if we don't have gross profit or gross loss, but we have opening stock, purchases and direct expenses like wages, carriage inward, and we deduct closing inventory out of that, and we get. So these three things I have represented here with the help of a flowchart, a small flowchart, which is the pattern of trading account. Here we were writing to opening stock, to net purchase, to direct expense, and here by sales, which is named here RFO, and by closing inventory. This side balance was gross profit, this side balance was gross loss. So your first formula is RFO minus gross profit. Why minus? Because both are of opposite side, RFO minus gross profit. Second formula is RFO plus gross profit. Why plus? Because both are of same side. So plus, same side transactions are added in accountancy, we know. Third formula, if these two are not available but rest
तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, सेल्स होता है, ठीक है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जब निकालना होगा तो डेटर्स प्लस बी आर इक्वल ओपनिंग डेटर बी आर प्लस क्लोजिंग डेटर बी आर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। मतलब एवरेज निकालना है तो ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में अकेला एक ही फिगर दिया रहता है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं होता है, तो उस केस में 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम नहीं डिडक्ट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल से, जब हमको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना होता है। TRTO निकालने के लिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डिडक्ट नहीं करते, अगर क्वेश्चन में दिया है उसको इग्नोर करेंगे। डेट कलेक्शन पीरियड जब निकालते हैं तो जिसको एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं, इसका 2 तरीका है, एक डेज में एक मंथ में। डेज में निकालना है तो 365 को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करेंगे, मंथ में निकालना है तो 12 को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। तो नेट क्रेडिट परचेज को डिवाइड करते हैं यहाँ पे एवरेज ट्रेड पेएबल से। नेट क्रेडिट परचेज क्या होता है, जो टोटल परचेज दिया है उसे रिटर्न माइनस कर दीजिए, कैश परचेज माइनस कर दीजिए, तो आपका नेट क्रेडिट परचेज आ गया। एवरेज ट्रेड पेएबल क्या होता है, तो ट्रेड पेएबल का मतलब होता है क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, तो दोनों का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एवरेज ट्रेड पेएबल। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, रेशियो निकल जाएगा। जिस तरह ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से एवरेज कलेक्शन पीरियड निकलता है, उसी तरह से ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो से एवरेज पेमेंट पीरियड निकलता है, जिसको एवरेज एज ऑफ पेएबल भी बोलते हैं। इसका भी 2 तरीका है, एक डेज में निकालने का 365 डिवाइडेड बाई TPTR ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, अगर डेज में निकालना है तो 12/TPTR। याद रखने के लिए सब शॉर्टकट यूज करते हैं, लिखते समय आप फुल फॉर्म में फॉर्मूला लिखिए। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को वर्किंग कैपिटल से कंपेयर करते हैं। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड करते हैं वर्किंग कैपिटल से। अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में तो COGS को डिवाइड करते हैं वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल निकालने हमने पहले सीखा हुआ है, करंट रेशियो में CA माइनस CL इसका फॉर्मूला है, आप उसके लिए करंट रेशियो वाला वीडियो को रेफर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में क्या है, नॉन करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है इसको। यहाँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को फिक्स्ड एसेट से डिवाइड करके और तब निकालते हैं कि क्या प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, तो यहाँ नेट फिक्स एसेट्स लेते हैं, मतलब फिक्स एसेट्स से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि बुक वैल्यू जो होता है फिक्स एसेट्स का वो लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, CE से डिनोट किया है मैंने। तो यहाँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर करते हैं। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, और जिसको नेट सेल्स बोलते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने सीखा है सॉल्वेंसी रेशियो में, तो आप उसके लिए सॉल्वेंसी रेशियो का वीडियो देख सकते हैं। जो भी कंटेंट है टू द पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है, ताकि स्टूडेंट्स का थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। अच्छे से वीडियो को देखिए, नहीं समझ आता है तो फिर से रिपीट देखिए, कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए। थैंक यू ऑल।